Hello everyone. Today we are going to discuss class 10th chapter number 5, that is classification of elements and periodicity in properties. So let us start. The first, why do we need to classify the elements? एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है? तो उसका बेसिक सा एक रीजन ये है that in the nature today we know that the total 118 elements are existing and each element is having the various compounds. So it is very difficult for a person to study the individually these elements and compounds. So the first reason to classify the element is that it makes the simpler study to elements and compounds. That is, it is very difficult to study the chemistry of all the elements and their compounds individually. The second reason is the classification would rationalize the non-chemical facts about the elements and also can predict the new ones for understanding the further study. कि एलिमेंट्स को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो उससे डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो है वो स्टडी करना इजी हो जाता है एंड वी कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट द सम न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बाय दिस स्टडी. During the 19th century, different chemists began to categorize the elements according to the similarities in their physical and chemical properties. In the starting of 19th century, different scientists, especially the chemists, they started to categorize the elements on the basis of the different physical and chemical properties, and the process of classification begins from the early 19th century. The first scientist who made the classification of element was John Dobryner, and he classified the elements, and that classification was called Dobryner's triad rule. In 1829, the scientist John Dobryner classified the some elements into different group of 3 elements, and each group of 3 element he called a triad. The element present in a triad are having the similar chemical properties and orderly physical properties. एक ट्राइड में जो आने वाले एलिमेंट्स थे उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम थे, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रही थी. The atomic mass of the central element is the arithmetic means of the other 2 elements present in the triad. कि जो सेंटर में ट्राइड के जो एलिमेंट आता है उस एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो अदर 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज होता है. फॉर एग्जांपल, उसने एक ट्राइड लिया, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, 3 एलिमेंट्स को मिला के एक ट्राइड बनाया. एटॉमिक मास ऑफ लिथियम वाज 7 एंड एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम वाज 39. और जब इसका एवरेज हम निकालते हैं then we get 23. So that 23 was the atomic mass of the middle element, that is a sodium. तो इस तरीके से उसने एक ट्राइड बना लिया, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. सिमिलरली कुछ अदर ट्राइड भी उसने बनाए थे, जिसमें से एक एग्जांपल है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. Atomic mass of chlorine was 35.5 and atomic mass of iodine was 126.9. और जब उसका एवरेज लेते हैं तो वो आता है 81.2, which is almost equal to the atomic mass of bromine. जो ब्रोमीन का एक्चुअल एटॉमिक मास है उसके ऑलमोस्ट क्या आता है, वो सिमिलर आता है. सेम इसी तरीके से एक दूसरा ट्राइड था कैल्शियम, स्ट्रांसियम एंड बेरियम. The first element, calcium, atomic mass is 40.1 and the third element, barium, its atomic mass is 137.3. और जब उसका एवरेज लेते हैं then we get to 88.7 and it is almost similar to the actual atomic mass of the middle element, that is strontium.
which is 87.6. So by this way he made the classification of element by combining the three elements, and each group of three element he called a triad. Now the advantage of Dobryner's classification was, its main advantage that the Dobryner was the first scientist who made an attempt to classify the elements according to their physical and chemical properties. And his attempt encouraged the other chemists to correlate the properties of element with their atomic mass. बाकी जो साइंटिस्ट या केमिस्ट उस टाइम वर्क कर रहे थे, इस क्लासिफिकेशन ने उनको encourage किया to correlate the properties of element with their atomic mass. And limitation सबसे बड़ी ये थी that Dobryner could find only the three triads like this from the known element. केवल वो 3 ट्राइड बना पाया, जबकि नॉन एलिमेंट्स का नंबर उस टाइम ज्यादा था. So we can say that it was not able to classify all the elements known at that time. Now come to the second classification, that is Newland's law of octave. The scientist John Newland arranged the elements in increasing order of their atomic weight. न्यूलैंड ने भी क्या किया, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया. एंड ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. जब उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था तो उसने ये देखा कि जो हर एक एलिमेंट है वो अपने से 8th पोजीशन पे जो एलिमेंट आता है उसके साथ में सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है. एंड दैट सिमिलरिटी इज जस्ट लाइक म्यूजिकल नोट्स. जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं, 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं, और 7 के बाद फर्स्ट जो है वो रिपीट करता है. उसी तरीके से एलिमेंट्स का रिपीटेशन हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. जैसे म्यूजिकल नोट में सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, और नी के बाद वापस रिपीटेशन किसका होता है, सा का. उसी तरीके से जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, देन आल्सो द एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट्स एट द 8th पोजीशन. जैसे यहाँ पे लिथियम से उसने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा था सोडियम, इट इज द 8th एलिमेंट टू द लिथियम. तो इसलिए लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम थी. आफ्टर सोडियम अगेन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एंड आफ्टर क्लोरीन द 8th एलिमेंट वाज पोटेशियम. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम वाज सिमिलर टू द लिथियम. तो इस तरीके से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है वो एक ग्रुप में आ गए. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है वो एक साथ आ गए. बोरोन, एल्यूमिनियम एक साथ आ गए. यानी ये एलिमेंट फर्स्ट टू 8th पोजीशन वाले थे, तो इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी. लेकिन जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसके भी कुछ लिमिटेशंस थी. लिमिटेशंस क्या थी? द लॉ ऑफ ऑक्टेव होल्ड्स गुड्स ओनली अप टू द एलिमेंट कैल्शियम. ये केवल कैल्शियम तक के एलिमेंट जो है उन्हीं को इस तरीके से प्रॉपरली क्लासिफाई कर पाता है. सेकंड, द न्यूलैंड कुड अरेंज ओनली द 56 एलिमेंट्स. यानी जो वो केवल 56 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाया, एंड देयरफॉर ही प्रपोज्ड ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर. तो न्यूलैंड ने ये कहा कि नेचर में 56 एलिमेंट हैं, वही एग्जिस्ट करते हैं, और उनको उसने इस तरीके से अरेंज किया था. द थर्ड लिमिटेशन इज ही एडजस्टेड द 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट. 2 अलग अलग एलिमेंट्स को उसने एक ही स्लॉट में रखा. एंड ऑल्सो एडजस्टेड द अनलाइक एलिमेंट इन द सेम कॉलम विच आर डिफरिंग इन प्रॉपर्टीज. जो ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उनको भी एक ही कॉलम में रख दिया. तो ये कुछ उसकी लिमिटेशंस थी. जैसे यहाँ पे कोबाल्ट एंड निकल है जिसको सर्कल हमने कर रखा है, एंड सीरियम एंड लैंथेनम है. ये अनलाइक एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं थी, लेकिन उनको एक साथ ही उसने
रखा। तो ये उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। इसके बाद थर्ड जो क्लासिफिकेशन आता है, इट इज मेंडेलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। साइंटिस्ट दिमित्री मेंडेलीव in 1869 published a table of element organized by increasing atomic mass। दिमित्री मेंडेलीव ने 1869 में एक पीरियोडिक टेबल डिजाइन की थी which was based on the increasing order of atomic mass of the element। He classified the element on the basis of a fundamental property, that is atomic mass and the similarities of the chemical property। उसने क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट जो कि एटॉमिक मास होती है उसके और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में एक कोरिलेशन करते हुए उसने क्लासिफिकेशन दिया था। Mendeleev arranged the 63 elements known at the time in the periodic table। जब उसने टेबल बनाई थी उस टाइम तक टोटल 63 एलिमेंट्स है वो नॉन थे, उसको टेबल में उसने अरेंज किया था। He then arranged the elements in increasing order of their atomic mass। उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। And he also observed that there is a periodic occurrence of element with the similar physical and chemical properties। यानी उसने ऑब्जर्व किया that while arranging the elements in increasing order of their atomic mass, element with the same physical and chemical properties repeats after a definite time interval। कुछ एक गैप के बाद क्या होता है, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स का रिपीटिशन होता है जिसको उसने पीरियोडिक अक्रेंस और पीरियोडिसिटी नाम दिया। अब जो मेंडेलीव्स टेबल थी या क्लासिफिकेशन जो था वो एक लॉ पे बेस्ड था जिसको कहा गया मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। एंड दिस लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। दैट मीन्स व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट देन आफ्टर ए फिक्स इंटरवल एलिमेंट विद द सेम प्रॉपर्टीज रिपीट्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पीरियोडिक लॉ he made the table which is called a Mendeleev's periodic table। Mendeleev arranged the elements in horizontal rows which were called periods and in vertical columns called group। एलिमेंट्स को उसने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रखा। जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उसको उसने कहा पीरियड और उन पीरियड्स का नंबर जो है वो 1 से लेके 6 तक रखा। जबकि जो वर्टिकल कॉलम्स थे उन वर्टिकल कॉलम्स को उसने ग्रुप नाम दिया जिनको रोमन न्यूमरल से 1 to 8th ग्रुप में बांटा गया। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड 8th। The arrangement was in the order of increasing atomic weight and the element with the similar properties occupied the same group। जब उसने एलिमेंट्स को रखा तो उसने ये देखा कि एक ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले होते हैं। अब जो मेंडेलीव्स टेबल थी वो इस तरीके से उसका डिज़ाइन था जिसमें वर्टिकल कॉलम्स को उसने ग्रुप्स कहा गया, जैसे फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से 8th ग्रुप थे। और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी इन हॉरिजॉन्टल रोज को उसने कहा पीरियड्स। तो पीरियड्स का नंबर है वो 6 था और ग्रुप का नंबर है वो मेंडेलीव्स टेबल में 8 थे। अब इन ग्रुप्स में से ग्रुप नंबर 1 से लेके 7 तक ईच ग्रुप वाज सब डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। हर एक ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए एंड बी। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, लाइक दिस। सो फ्रॉम फर्स्ट टू 7th, each group was divided into 2 subgroups।
तो ऐसे टोटल 63 एलिमेंट्स जो है उनको उसने इस तरीके से यहाँ पे अरेंज करके ये टेबल बनाई थी, एंड दैट टेबल इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो उसमें ये कहा कि एक ग्रुप में जो आने वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम, सिल्वर, सीजियम, गोल्ड, ये सारे क्या हैं, सेम प्रॉपर्टी वाले होते हैं। सेम ऐसे ही सेकंड ग्रुप में जो आते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, थर्ड वालों की प्रॉपर्टी भी सेम होगी। सो एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ग्रुप दे आर ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ कम टू द एडवांटेज ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या क्या एडवांटेज थे इस मेंडेलीव्स टेबल के? तो फर्स्ट एडवांटेज था दैट मेंडेलीव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who classified the elements and tabularized the elements in form of a table। ये एक फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेबल में एलिमेंट्स को इस तरीके से क्लासिफाई किया था, और इसीलिए मेंडेलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। दिमित्री मेंडेलीव इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो द फर्स्ट एडवांटेज वाज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। कि एलिमेंट को सिस्टमेटिकली स्टडी करना जो है वो इजी हो गया मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे। एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज वर ग्रुप्ड टुगेदर एंड दैट मेड द स्टडी ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इजियर। एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी, तो इसीलिए एक ग्रुप को स्टडी करें दैट मीन्स उसमें आने वाले सारे एलिमेंट की स्टडी एक साथ कर सकते हैं। तो ये सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट हो गया। Second, the prediction of properties of yet to be discovered elements। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज था मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल का वो ये था कि कुछ एलिमेंट जो उस क्लासिफिकेशन के टाइम डिस्कवर्ड नहीं थे उनका भी प्रिडिक्शन करके उनकी प्रॉपर्टीज को उसने एक्सप्लेन किया था। मीन्स फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज को उसने प्री डिफाइंड कर दिया, और उन एलिमेंट्स की जगह जो एलिमेंट आना था फ्यूचर में जो डिस्कवर होना था उनको पहले से ही उसने नेम प्रोवाइड कर दिया बाय एडिंग ए प्रीफिक्स इन द नेम ऑफ नियर बाई एलिमेंट। जैसे बोरोन के क्लोज जो एलिमेंट था वो एका बोरोन, फिर एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, इस तरीके से उसने प्री डिफाइन कर दिया एंड ऑल्सो डिस्कवर्ड सम द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट्स। अब जब एक्चुअल में उन एलिमेंट्स की बाद में डिस्कवरी हुई और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया, सो दीज प्रॉपर्टीज वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज विच वर डिफाइंड बाय द मेंडेलीव्स प्रीवियसली। पहले जो उसने प्रॉपर्टी बताई थी वो एक्चुअल प्रॉपर्टीज के साथ ऑलमोस्ट क्या हो रही थी, कोरिलेट कर रही थी। तो ये उसका सेकेंड बेस्ट एडवांटेज था। जैसे एलिमेंट थे स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। These elements were actually not discovered at the time of classification given by Mendeleev. So Mendeleev has placed some vacant space in his table for those elements which were discovered later, and he also provided the name of those vacant places. For scandium, he wrote a name Eka boron, gallium Eka aluminium एंड जर्मेनियम एका सिलिकॉन। ऐसे उसने पहले से नेम दे दिया कि एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। एंड ऑल्सो ही डिफाइंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एका एल्यूमिनियम ही डिफाइंड दैट इट्स एटॉमिक मास वुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 68। और जब एक्चुअल में गैलियम की डिस्कवरी हुई तो उसका एटॉमिक वेट था 69.7, जो कि ऑलमोस्ट सेम आ रहा था। सेकंड, उसने फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड बताया कि एका एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उसका केमिकल फॉर्मूला बनता है E2O3, और बाद में जब गैलियम की डिस्कवरी हुई तो गैलियम ऑक्सीजन के साथ Ga2O3 बनाता है, यानी सेम वैसा ही कंपाउंड बना रहा है। सेम इसी तरीके से जो क्लोराइड है ECl3 एका एल्यूमिनियम के लिए उसने बताया, और जो गैलियम है वो एक्चुअल में GaCl3 बनाता है। इसका मतलब उनकी प्रॉपर्टीज को उसने क्या कर दिया,
प्री डिफाइंड कर दिया फॉर दोज एलिमेंट विच वर नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन। तीसरा एडवांटेज था, व्हेन मेंडेलीव्स प्रिपेयर्ड ए टेबल एट दैट टाइम द इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, xenon and radon, these gases were not discovered. इन गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी एंड दीज गैसेस आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। फिर बाद में जब ये डिस्कवर हुई तो उन एलिमेंट्स को एक सेपरेट ग्रुप मेंडेलीव्स टेबल में ऐड कर दिया गया जिसको कहा गया जीरो ग्रुप, और उसको सबसे लास्ट में रखा गया। तो ये भी एक उसका एडवांटेज था कि नोबल गैसेस के डिस्कवरी होने के बाद भी उसकी जो टेबल है वो डिस्टर्ब नहीं हुई, यानी लास्ट में एक सेपरेट ग्रुप ऐड कर दिया और उसी वजह से जो टेबल है वो एज इट इज रही, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आई। लेकिन इतने सारे एडवांटेज होने के बाद भी जो मेंडेलीव्स क्लासिफिकेशन या मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या क्या थी? फर्स्ट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडेलीव ने हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो फर्स्ट ए ग्रुप में रखा हाइड्रोजन को, और उसने ये कहा कि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ में मैच करती है। लेकिन हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो सेवंथ ए ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एलिमेंट्स आते हैं जिनको हम हैलोजन कह रहे हैं। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है वो हैलोजन के साथ भी मैच करती है। तो ये जस्टिफाई नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन की पोजीशन फर्स्ट ए के साथ ज़्यादा सूटेबल है या सेवंथ ए के साथ सूटेबल है, तो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो ये इसकी एक लिमिटेशन थी, दैट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट जस्टिफाइड बाय मेंडेलीव, कि हाइड्रोजन की पोजीशन को उसने जस्टिफाई नहीं किया। सेकेंड लिमिटेशन थी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें क्या होता है? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास, यानी एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स जिनका एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोटोप्स कह रहे हैं। जो मेंडेलीव्स टेबल थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखी गई थी एलिमेंट्स उसमें। तो जब आइसोटोप्स का मास डिफरेंट होता है तो उनको अलग अलग पोजीशन पे रखना चाहिए था, लेकिन मेंडेलीव ने ऐसा नहीं किया, यानी आइसोटोप्स के लिए कोई भी सेपरेट स्पेस जो है वो उसने प्रोवाइड नहीं किया। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स मिलते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो इन तीनों का मास डिफरेंट है, फिर भी तीनों को एक साथ ही रखा गया। दैट मीन्स पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट डिफाइंड बाय मेंडेलीव। दैट इज द सेकेंड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन इज द एनोमलस पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स, कि जब उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज किया तो कई जगह उसने क्या किया, इस ऑर्डर को खुद ही फॉलो नहीं किया, यानी एनोमलस कुछ पेयर्स ऐसे बन गए जहां पे लेस एटॉमिक मास वाला एलिमेंट बाद में रखा गया जबकि मोर एटॉमिक मास वाले को पहले रखा गया। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकेल। अब जो कोबाल्ट और निकेल है, एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट इज हायर देन द एटॉमिक मास ऑफ निकेल, लेकिन टेबल में कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकेल को बाद में रख दिया। तो ये एक तरीके से ऑर्डर को ही उसने फॉलो नहीं किया था। सेम ऐसे ही एक दूसरा पेयर भी था, टेल्यूरियम एंड आयोडीन। यहाँ पे भी टेल्यूरियम को पहले रखा जबकि उसका एटॉमिक मास है वो आयोडीन से ज़्यादा होता है। तो एनोमलस पेयर्स कुछ ऐसे रख दिए उसने जहाँ पे वो जस्टिफाई नहीं कर पाया कि कम एटॉमिक मास वाले को बाद में क्यों रखा और ज़्यादा वाले को पहले क्यों रखा। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन थी द प्लेसमेंट ऑफ लाइक एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स। उसने ये कहा था कि एक ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम प्रॉपर्टी वाले होते हैं, फिर भी कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी।
फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम एंड गोल्ड, इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है बट दे वर प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप्स। फिर भी उनको अलग अलग ग्रुप में क्यों रखा उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया। एंड लास्ट लिमिटेशन वाज द कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मीन्स हम ये कह रहे थे कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीज कर ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखते हैं तो आफ्टर ए फिक्स इंटरवल एलिमेंट विद द सेम प्रॉपर्टीज रिपीट्स। तो वो रिपीटेशन जो हो रहा है एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज का, वो क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, उसको वो जस्टिफाई या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। नाउ कम टू द advanced classification, that is modern periodic table. In 1913, the scientist Henry Moseley arranged the element in order of increasing atomic number. हेनरी मोजले ने क्या किया, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को कोरिलेट किया विद देयर एटॉमिक नंबर, जबकि मेंडेलीव ने क्या किया था, एटॉमिक मास से कोरिलेट करके क्लासिफिकेशन दिया था। तो एटॉमिक नंबर से कोरिलेट करते हुए उसने क्लासिफिकेशन दिया था। He thereby showed that the atomic number is more fundamental property of element than its atomic mass। यानी उसने ये बताया कि जो एटॉमिक नंबर है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इन कंपैरिजन टू द एटॉमिक मास। क्योंकि एटॉमिक नंबर एक्चुअल में होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है वो उसके एटॉमिक नंबर को बताता है, और किसी भी न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसी के बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन कंपैरिजन टू द मास। तो इसलिए ये कहा कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास फॉर एन एलिमेंट। एंड देन he redefined the periodic law, and which is called modern periodic law. And this law states that the physical and chemical properties of the element are periodic function of their atomic number। कि जो physical और chemical property of element है they are the periodic function of their atomic number। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें और मेंडेलीव्स टेबल में जो बेसिक डिफरेंस है वो है, मेंडेलीव्स टेबल पीरियोडिक लॉ जो है वो ये कहता है कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या कहा गया, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ a new table was designed which was called modern periodic table or long form of periodic table। modern periodic table या long form of periodic table भी कहा जाता है, जबकि मेंडेलीव्स टेबल को क्या कह रहे थे हम, शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कह रहे थे। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स यानी जो ग्रुप्स थे उनका नंबर था 18 ग्रुप्स थे, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनका नंबर था 7। तो 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप में टोटल एलिमेंट्स को अरेंज करके रखा गया। तो यहाँ पे टोटल 118 जो एलिमेंट्स है वो क्लासिफाइड किए हुए हैं। नाउ द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। इट कंटेन्स 18 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। 18 ग्रुप है और 7 इसमें पीरियड्स हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड आर, हर एक पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे फर्स्ट पीरियड में 2 है, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ एंड सेवन्थ जो उसके अंदर 32 एलिमेंट्स आते हैं।
मीन्स 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से 7 पीरियड्स में एलिमेंट्स है वो क्लासिफाइड है। द एलिमेंट इन ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16 and 17, they are known as main group elements or normal elements। 1, 2 और 13 से लेके 17th ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स। एंड द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12, 3 से लेके 12 नंबर तक के जो एलिमेंट हैं दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 3 to 12 वाले हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। एंड ग्रुप नंबर 18 इज कॉल्ड नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। तो ऐसे 1 से लेके 18 तक के ग्रुप्स थे, जिसमें 1st, 2nd and 13 to 17 आर नॉर्मल एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 3 to 12 आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड ग्रुप नंबर 18 इज द नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। अब जो ग्रुप और पीरियड्स में जो बेसिक डिफरेंस है या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स है वो क्या है? तो वर्टिकल कॉलम ऑफ टेबल आर ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ टेबल्स आर पीरियड्स। Number of group in modern periodic table is 18 and number of period is 7. In group having the same number of valence electrons, एक ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो सेम होता है। जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, सेकेंड ग्रुप वालों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2, 13 वालों में होता है 3, 14 वालों के पास 4, 15 के पास 5, 16 के पास 6, 17 के पास 7। तो इस तरीके से एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सबके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होते हैं। बट इन ए पीरियड द इलेक्ट्रॉन फिलिंग टेक प्लेस इन द सेम सेल, यानी एक पीरियड में जो एलिमेंट्स आते हैं उनके पास नंबर ऑफ सेल्स है वो सेम रहते हैं। In a group having similar outer electronic configuration, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है यानी आउटर सेल में जो कन्फिग्रेशन है वो सेम रहता है। बट द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ए पीरियड, द पीरियड नंबर correspond to the number of outermost cell, यानी किसी पर्टिकुलर पीरियड में कितने सेल्स होते हैं वो डिपेंड करता है उस पीरियड के नंबर पे। जैसे फर्स्ट पीरियड वालों के पास नंबर ऑफ सेल 1 होता है, 5th वालों के पास नंबर ऑफ सेल 5 होते हैं और 7th वालों के पास नंबर ऑफ सेल्स है वो 7 होते हैं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड पीरियड्स। नाउ कम टू द ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी जो प्रॉपर्टीज हैं उनका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या वेरिएशन आता है या किस ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो चेंज होती है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे वो होती है एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, वैलेंसी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज है जिसका वेरिएशन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस सेल ऑफ द एटम। किसी भी एटम में जो उसका सेंट्रल पार्ट है उसके और जो उसका आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये कहलाती है रेडियस, एटॉमिक रेडियस। और उस एटॉमिक रेडियस से हम साइज को डिटरमाइन करते हैं, एटॉमिक साइज को। जैसे यहाँ पे देखो, एटॉमिक रेडियस ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 0.70 एंगस्ट्रॉम, कि नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से लेके उसके आउटरमोस्ट सेल के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है, 0.7 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इस एटॉमिक साइज का वेरिएशन कैसे आता है?
तो यहाँ पे स्टडी हम दो तरीके से करते हैं। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, कि किसी ग्रुप में हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएं तो क्या वेरिएशन आता है। तो सबसे पहला वेरिएशन हम देखते हैं अलोंग द पीरियड। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, देन atomic radius decreases because the effective nuclear charge increases by 1 unit and it pulls the valence electrons or the electron clouds closer to the nucleus। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट में हम जाते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, और वो प्रोटॉन बढ़ने की वजह से जो उसका न्यूक्लियर चार्ज है, जो सबसे लास्ट के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की तरफ से फील होता है, जो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, वो बढ़ते जाता है। और जैसे जैसे उस न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन्स उतना ही न्यूक्लियस के क्लोज आते जाता है, मीन्स उसका साइज रिड्यूस होते जाता है। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो उस केस में साइज जो है वो रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है। बट एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a group, then atomic radius increases because the new cells are added। जैसे टॉप से बॉटम की तरफ हम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, और सेल बढ़ेगा तो उसकी वजह से साइज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाता है। Hence the distance between the nucleus and the valence electron or the electron cloud increases। So that is the variation in the period and in a group। In a period from left to right, size reduce because effective nuclear charge increases, and from top to bottom in a group, the atomic radius or size increases due to increase in number of cells। अब यहाँ पे देखो, जैसे किसी एक ग्रुप की बात करें हम, तो फर्स्ट ग्रुप को लेते हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा है, फिर लिथियम का बड़ा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज है वो बढ़ते जा रहा है। सो इन ए ग्रुप एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन द एटॉमिक रेडियस और साइज इंक्रीजेस बिकॉज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। एंड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे इस पीरियड को बात करें हम सेकेंड पीरियड की, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो यहाँ पे लिथियम की एटॉमिक रेडियस है 152 और नियॉन की एटॉमिक रेडियस है वो आ जाती है यहाँ पे 71 पिकोमीटर। इस साइज में रखा है इसको हमने पिकोमीटर में। तो लिथियम से लेके नियॉन तक जा रहे हैं तो वहाँ पे साइज क्या हो रहा है, इसका रिड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट atomic radius decreases due to increase in effective nuclear charge। कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, उस वजह से साइज है वो रिड्यूस होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी फिर आती है वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरीके से कंबाइंड होता है, तो वो क्या कहलाती है? उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट कहलाती है। अब ये वैलेंसी जो है, इट डिपेंड्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किस पे डिपेंड करती है? वो जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन पे डिपेंड करती है। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टू वेज। वैलेंसी मे बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकती है इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, 2, 3 और 4, यानी 4 या 4 से कम अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो उसकी वैलेंसी के बराबर होते हैं। बट इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, दैट इज 5, 6, 7 और 8, देन वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
तो 8 में से जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस करने पे जो नंबर आता है वो उसकी वैलेंसी होती है। अब इस वैलेंसी का वेरिएशन कैसे आएगा? तो फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट इन ए ग्रुप, so as we move from top to bottom, then how the valency of element changes. Already we have discussed that the element present in a group, they are having the similar chemical and physical properties. सबकी प्रॉपर्टी एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट की सेम होती है। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम रहते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उन सब के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है? 1 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट मीन्स वैलेंसी भी क्या रहती है? सेम रहती है। तो ग्रुप में कभी भी वैलेंसी चेंज नहीं होती। द वैलेंसी ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ग्रुप इज सेम। सेकेंड है इन ए पीरियड, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। जैसे हम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरीके से बात करते हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं लिथियम में 1 होता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस तरीके से वेरिएशन आता है। तो पहले क्या होगा? वैलेंसी इंक्रीज करती है, यानी लिथियम की वैलेंसी 1 है, फिर बेरिलियम की 2, बोरोन की 3, कार्बन की 4, एंड आफ्टर दैट वैलेंसी डिक्रीजेस। तो नाइट्रोजन के केस में फिर वापस 8-5 यानी 3 हो जाएगी, ऑक्सीजन में 2, 1, 0। सो इन ए पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेस। तो यहाँ पे देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के लिए रखा है। ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इसकी वैलेंसी है। फर्स्ट 2, 3, 4 एंड देन 3, 2, 1, 0। पहले बढ़ रही है, बाद में डिक्रीज करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएशन ऑफ मेटेलिक प्रॉपर्टीज, कि जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज है उसमें कैसे वेरिएशन आता है। अब मेटेलिक प्रॉपर्टीज से मतलब क्या है? मेटल्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होती है, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। सो मेटेलिक प्रॉपर्टी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई भी एटम कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो डिपेंड करता है कि उसके न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे कितना अट्रैक्शन लग रहा है, यानी ये जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी से निकलेगा। और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स का निकलना ईजी होता है, दैट मीन्स मेटेलिक प्रॉपर्टी उसकी ज़्यादा होती है। सो इन ए ग्रुप along the period from left to right, sorry, पहले पीरियड की बात कर रहे हैं। in a period along the period from left to right the metallic character decreases। लेफ्ट से राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट है वो डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है और जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का निकलना डिफिकल्ट होते जाएगा, तो इसीलिए मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होते जाएगा? घटते जाता है। सो इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। और सेकेंड, इन ए ग्रुप मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि
साइज जो है वो इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे चार्ज कम होगा इलेक्ट्रॉन्स का निकलना आसान होते जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, तो मेटेलिक करैक्टर है वो बढ़ेगा। सो दिस इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटेलिक करैक्टर में वेरिएशन आता है कि इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक करैक्टर कम होगा और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एलिमेंट्स का मेटेलिक करैक्टर है वो बढ़ता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर जा रहे हैं हम लेफ्ट टू राइट तो मेटेलिक करैक्टर कम होगा, यानी लेफ्ट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं, राइट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक करैक्टर कम होता है। एंड टॉप टू बॉटम अगर जा रहे हैं तो उस केस में मेटेलिक करैक्टर है वो बढ़ता है। नीचे वाले जो है वो मोर मेटेलिक करैक्टर वाले होते हैं देन कंपेरिजन टू द एलिमेंट प्रेजेंट इन द अपर एंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द वेरिएशन ऑफ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, कि जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज है उनमें कैसे वेरिएशन आता है। अब नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होंगे कि कोई भी एलिमेंट कितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक करैक्टर। अब इस नॉन मेटेलिक करैक्टर में भी वेरिएशन कैसे आएगा। फर्स्ट इन ए पीरियड, along the period from left to right the non metallic character increases। लेफ्ट से राइट जाने पे नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, तो उसका रीजन हो जाएगा साइज डिक्रीज कर रहा है और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जो रीजन मैंने मेटेलिक करैक्टर में बताया था सेम वही रीजन यहाँ पे नॉन मेटेलिक में हो जाएगा कि नॉन मेटेलिक करैक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज कर रहा है बिकॉज साइज डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। सिमिलरली इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम as the distance between the nucleus and the valence cell increases the nuclear pull decreases and this decrease the tendency of an atom to get an electron in its valence cell। तो अगर साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो उससे इलेक्ट्रॉन का जुड़ना जो है वो डिफिकल्ट होते जाएगा। सो इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एटॉमिक साइज, वैलेंसी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर जिनका वेरिएशन या ट्रेंड्स है वो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्टडी किया। जैसे यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी है, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी है, लेफ्ट टू राइट जाएंगी तो क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है। मेटेलिक करैक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज कर रहा है। नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो राइट टू लेफ्ट आने पे इंक्रीज हो रहा है, मीन्स लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है सॉरी, और लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज हो रही है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनका वेरिएशन हमने देखा था यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेल्स की बात करें, एक पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स है वो सेम रहते हैं। लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स है वो बढ़ते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में इंक्रीज होते हैं, जबकि एक ग्रुप में वो सेम रहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम ग्रुप में डिक्रीज होता है। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। मेटेलिक करैक्टर जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम है वो डिक्रीज करता है।
तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनका वेरिएशन हमने यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्टडी किया था। अब फिर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले मेरिट्स यानी एडवांटेज की बात करें तो पहला एडवांटेज है इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। सेकंड, द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जो एलिमेंट की पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है ना कि मास पे डिपेंड करती है। द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज शोज ए ग्रेजुअल वेरिएशन एट द रेगुलर इंटरवल, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक वेरिएशन शो करती हैं एक डेफिनेट इंटरवल के बाद। एंड इट इज ईजियर टू रिमेंबर, अंडरस्टैंड एंड रिप्रोड्यूस, जो टेबल है उसको रिमेम्बराइज करना, मेमोराइज करना, समझना वो ज़्यादा आसान होता है। डीमेरिट्स में क्या है कि जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है वो यहाँ पे भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मीन्स वहाँ पे भी उसको जस्टिफाई नहीं किया गया है। सेकंड, फेल्स टू अकोमोडेट द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टेबल में नीचे से रखा गया है अलग से, जिनको लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स कहा जाता है, तो उनको मेन टेबल में जगह नहीं दी गई, तो उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड द फ्यू एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे भी कुछ पेयर्स ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया। तो सो दीज आर सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।